کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ اتانی جبرائیل علیہ السلام، وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے۔ یہ روایت کئی طرح کی ہے اور کئی لوگوں کا ذکر ہے اس میں۔ نمبر 1 اس شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی جو کافر اور مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ نمبر 2 وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے۔ نمبر 3 وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ نمبر 4 وہ شخص ہے جو رشتہ قطع کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ شخص ہے جو چغل خور ہے، اور پھر وہ شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے پیجاموں کا اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، چاہے پینٹ ہو، چاہے کوئی لوور ہو، چاہے لنگی ہو، اپنے لٹکاتا ہے۔ اس طرح کی کئی لمبی فہرست ہے، کئی روایتوں کے اندر یہ چیز ہے۔ میرے دوستو، آپ نے چاہیے اتنی مبارک رات ہے جو اللہ تعالیٰ مغرب سورج ڈوبتے ہی اللہ تعالیٰ اس آسمان پر آ جاتے ہیں اور مغفرت کی ندا لگاتے ہیں، الا بالمستغفر فاغفر له، کوئی مغفرت کا طلبگار ہے اس کی مغفرت کرو۔ لیکن کتنا محروم القسمت بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی فہرست، اللہ کی معافی والی فہرست سے وہ خارج ہو جاتا ہے، وہ باہر ہو جاتا ہے، اللہ اس کو باہر کر دیتا ہے، اپنے در سے بھگا دیتا ہے۔ تیری عبادت قبول نہیں ہوگی، پہلے جا اپنے ان گناہوں سے معافی مانگ، اپنے ان گناہوں سے توبہ کر، اس کے بعد پھر میرے در پہ آ۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جن صفات کا اللہ حامل ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ بہت سی خوبیوں کا مالک ہے، وہی خوبیاں اللہ کے کسی بندے کے اندر یہ تلاش کرنا اور اس کا کرنا کہ جس طرح سے اللہ یہ حاجت پورا کرتا ہے یہ دوسرے بندے بھی اللہ کی حاجت پورا کرتے ہیں، کہ اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کس چیز کی کمی، میں تو خزانوں کا مالک ہوں، میں نے زمین و آسمان بنایا، ساری چیزیں بنائی، تیری آنکھ ساری چیز سب کچھ دیا، کس چیز کی کمی تھی جو مجھ سے نہ مانگ کر کے تو میرے بندوں کے در پہ جاتا ہے، ان سے فریاد کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو ہر چیز پر قادر تھا، تو مجھ سے مانگتا تو، مجھ سے کہتا تو، مجھ سے فریاد تو کرتا، میرے سامنے ہاتھ تو اٹھاتا، میں تجھے دیتا، لیکن تو میرے در پر ہاتھ نہ پھیلا کر غیروں کے در پر در بدر پھر رہا تھا، یہ مجھے ذرا برابر گوارا نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے سن لو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھی بنائے گا، اللہ اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس شخص پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی، اور ایسے ظالموں کا اللہ کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول نہ کرے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہے، شراب ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب جو ہے ام الخبائث کہا گیا ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آدمی شراب پی لے پھر اپنی ماں بہن کو نہیں سمجھتا یہ کون ہے، اپنے بھائی کو نہیں سمجھتا، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، کسی گالیاں بکتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، عقلیں کام کرنا بند کر دیتی ہے، تمام جو برائی نہیں کرنا چاہیے شراب پینے کے بعد انسان کر لیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے مسلم نوجوان، بہت سے لڑکے، بہت سے مسلمان کیا ہیں گناہوں کے اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، انہیں چاہیے اپنے اس شراب کے نشے سے توبہ کریں، اور جو بھی نشہ شراب کی طرح ہو، چاہے وہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کون سا نشہ شراب کی طرح ہوتا ہے، اس سے آپ کیا کریں، بچیں، اپنے آپ کو پاک کریں۔ اگر کوئی شراب کا عادی ہوگا اس رات میں اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا بھی کہا گیا ہے، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنی بیویوں کی بات کو اپنی ماں پر ترجیح دینے لگے، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگے، تو جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس شخص کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی، وہ شخص بھی اس مغفرت سے محروم ہوگا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल। अल्लाह तो जानता है माँ बाप बुढ़ापे में जब शिकार हो जाते हैं तो उनके दिमागों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बहुत सी वो तजर्बेकार होते हैं, तुम्हारे गलत बातों पर वो निशानदही करते हैं, टोकते हैं, लेकिन तुम अपने आप को अक्लमंद बन करके और नए जमाने और नए तहजीब और नए तमद्दुन के ज्यादा समझदार अक्लमंद बनते हुए उनकी बातों पर तुम झिड़क देते हो और डांट देते हो। तो अल्लाह कहता है ऐसी गलती मत करो। उनको वला तनहरहुमा, उनके अगर उनसे कोई चीजें साजिश हो जाती हैं तुम उनको झिड़को नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके साथ नरमी से बात किया करो, मोहब्बत से बात किया करो। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि सुन लो रिज़ल रब्बि रिज़ल वालिदैन की बात, अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में है। अगर तुम अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर फर्ज ही बनता है सबसे पहले अपने माँ बाप को खुश करो। अगर तुम कितने भी बड़े इबादत गुजार बन जाओ, तहज्जुद के आदी बन जाओ, नवाज़ों के पाबंद बन जाओ, हज और उम्रे कर डालो, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी। तुम जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि माँ बाप, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। जन्नत तो तुम्हारे लिए यही लोग हैं, अगर इन्हीं से जन्नत में हासिल किए फिर उस जन्नत का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की कदर करें। अगर हमसे कोई गलती और खता हो जाती है माँ बाप के सामने जा करके माफी मांगे। हम चौराहों पर जाते हैं, कहीं और कहीं जाते हैं, अगर थोड़ी सी गलती होगी तो सॉरी बोल देते हैं। तो क्या अगर हम माँ बाप के शान में गुस्ताखी करते हैं तो उनसे माफी नहीं तलब कर सकते? मुझे माफ कर दीजिए, मैं जज्बात में बोल गया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैं गुस्से में आ गया, मुझे माफ कर दें। माँ बाप तो फौरन माफ कर देते हैं। आप उस सहाबी रसूल का वाक़या तो सुने, सहाबी रसूल है हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नज़ा का वक्त है, ज़बान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। सहाबी रसूल ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जाकर के कहा हज़रत अलक़मा मौत की हालत में, नजर की हालत में है, इनकी रूह परवाह नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए और इनकी कंडीशन देखा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा इनकी वालिदा जिंदा है? लोगों ने कहा हाँ। तो बताया कि इनको बुलाया जाए। आप ये वाक़या सुन चुके होंगे। बुलाया गया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अलक़मा कैसा लड़का है? उनकी माँ ने कहा अल्लाह के नबी ये तो बड़ा अच्छा है, तहज्जुद गुजार है, नमाज का पाबंद है, तक़वा तहारत वाला है, सब कुछ है। तो फिर कहा अच्छा बताओ तुम्हारे और इसके मामलात कैसे थे, तुम्हारे ताल्लुकात उसके साथ कैसे थे? तो कहे अल्लाह के नबी हमारे उसके दरमियान जो ताल्लुकात थे बहुत ही ज्यादा खराब थे, बहुत तकलीफ दे थे, इसने मुझे बहुत सताया, मुझे बहुत तकलीफें दी। हर बात में अपनी बीवी के बात को तरजीह देता था, मेरी बात को झुठला देता था और जो इसकी बीवी कहती थी वो मान जाता था। उसने मुझे बड़ी तकलीफें पहुंचाया है। अल्लाह के नबी ने कहा बूढ़ी अम्मा उसको माफ कर दो। तो कहे अल्लाह के नबी मैं माफ नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाया, मेरा दिल तकलीफों से भर चुका है, माफ करने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर माफ करने की गुंजाइश नहीं है तो कोई बात नहीं। सहाबी रसूल से अर्ज़ किया लकड़ियां लाओ और जमा करो, हम आग लगा देते हैं। हज़रत अलक़मा उसमें जला देते हैं। तो माँ बूढ़ी कहती अल्लाह के नबी मेरे बेटे को मेरे सामने आप जलाएंगे? माँ ने कहा अल्लाह के नबी ने कहा हाँ जलाएंगे, अगर तुम माफ ना करोगे तो फिर हम इसको जलाएंगे ताकि इसकी सजा इसको दुनिया में मिल जाए, मरने के बाद इसको सजा न मिले। तो उस बूढ़ी माँ होती है, कितना भी कोई गुनाह करे, उतना भी कोई नाफरमानी करे, कोई हमेशा बच्चे ही माँ बाप से झगड़ते, माँ बाप बच्चों से नहीं झगड़ते, वो लोग अपने जिगर पे तीर नहीं चलाते, तुम ही लोग खंजर चलाते हो। माँ ने कहा अल्लाह के नबी मैं माफ करती हूँ। जैसे उन्होंने लफ्ज़ जुमला माफी का कहा हज़रत अलक़मा की ज़बान से कलमा जारी हुआ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे दोस्तों ये सहाबी रसूल का मकाम और मर्तबा है जिसके बारे में अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। उन्होंने माँ की नाफरमानी की, माँ को ठेस पहुंचाया, अल्लाह ने उनके ज़बान से कलमा छीन लिया, कलमा जारी नहीं हो रहा था। आज हम कितने माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं, उनके हुकूक की तरफ हम तलबी करते हैं। मेरे दोस्तों आज हमारे कैसी माफी होगी, आज हमारे अंदर कैसी अल्लाह हमें नजर करम फरमाएगा। तो जो शख्स वालिदैन का नाफरमान है उसे चाहिए कि आज फोन करके चाहने वालिदैन हो आज इस रात में अपने माँ बाप से माफी तलब करे। अगर वो जिंदा है उनके लिए माफी तलब करे, अगर वो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करे, उनके तरफ से सदका और खैरात करे। फिर उसके बाद आता है चुगलखोर। जो शख्स चुगलखोर होता है उसकी भी आज की रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। चुगलखोर कहते हैं जो इधर की बात उधर लगाता हो, इनकी बात सुना उधर लगा दिया, चुगलखोर के बारे में भी आता है। अल्लाह ताला आज की इस रात में चुगलखोर की भी मग़फ़िरत नहीं करते हैं, इसी तरीके से उस शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं करते जो ज़ानी हो,
ज़िना मुआशरे का सबसे बदतर गुनाह है जो मुआशरे को खराब कर देता है, मुआशरे के अंदर बदबू फैला देता है, इसकी गंदगी पूरे मुआशरे के अंदर फैल जाती है। और ज़िना सिर्फ शराबों का आपस में मिलना नहीं है, आंखों का भी ज़िना होता है, हाथों का भी ज़िना होता है, पैरों का भी ज़िना होता है, दिल का भी ज़िना होता है। मेरे दोस्तों, आंखों का ज़िना वो है जो हम बाजार में गैर महरम औरतों को देखते हैं, मोबाइलों के अंदर देखते हैं। आज हम अपनी नजरों को जो खराब करते हैं, कल क़यामत के दिन हमारे आंखों के अंदर शीशा पिघला करके डाला जाएगा। फिर हमें हमें यह उज़्र करने की हमें मोहलत न दी जाएगी कि तुम दुनिया के किस कोने में थे, किस गंदे माहौल में थे। मेरे दोस्तों, आप अपने अंदर अगर तक़वा पैदा कर लें कि मैं इस गंदी चीज को अगर करूंगा अल्लाह मेरी पकड़ करेगा, मेरी आंखों के अंदर आज हम थोड़ी वक्ती तौर पर अपनी आंखों को लज्जत पहुंचा देंगे, लेकिन मेरे दोस्तों कल क़यामत में लज्जत पहुंचाने की वजह से अल्लाह हमें हमारी आंखों में शीशा पिघला कर डालेगा, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। और ये क़यामत का दिन हक है, इस मंजर को अगर आप सामने रख लें मेरे दोस्तों हमारी निगाहें झुक जानी चाहिए, हमें इस गुनाह से बच जाना चाहिए। लेकिन आज हम इतने गुनाह के आदी हो गए हैं कि शैतान हमें धोखा देता है, एक मर्तबा देख लो, एक मर्तबा ये गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेना। मेरे दोस्तों, ये शैतान हमें बार बार इस तरह से हरकतें दिलाता है और ये सिफत दिलाता है बाद में तौबा कर लेना, आखिरी मर्तबा कर लो। ये शैतान का धोखा होता है, हमें शैतान के धोखे में नहीं आना चाहिए, हमें अल्लाह नाराज हो जाएगा। इस गुनाह की वजह से चंद वक्ती लज्जत की वजह से हम हमेशा हमेशा गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहना चाहिए और अपने आंखों को ज़िना से बचाना चाहिए। अगर हम ज़िना की तरफ कदम उठाते हैं, ये पैर भी हमारा ज़िना कर रहा है और बकिया और ज़िना का जो आखिरी अंजाम है मेरे दोस्तों, ये ज़िना करने वाले के बारे में आता है जो शख्स ज़िना का आदी होता है, सबसे पहले अल्लाह उसको दुनिया में ये सज़ा देते हैं, अल्लाह ताला उसको उम्र की बरकत कम कर देते हैं, उसकी उम्र में बरकत नहीं होती, उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं होती, अल्लाह उसके चेहरे से रौनक छीन लेते हैं और उसके दिल से सुकून छीन लेते हैं। आज हम लोग नमाजें तो पढ़ते हैं, बहुत सी इबादतें करते हैं, लेकिन इन गुनाहों से बचते नहीं, इसकी वजह से आज हम बेचैनी के शिकार हैं, चेहरे पे रौनक नहीं, अक्सर नेक कामों में दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, ये इस गुनाह की नहुसत होती है। मेरे दोस्तों, आज ऐसे ऐसे गुनहगार और खताकार लोग, बदकार लोग हैं जिस रात के अंदर उनकी मग़फ़िरत नहीं होती है। हमें चाहिए इन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगे और अल्लाह के सामने जब 15वीं शाबान की रात आ जाए हत्ता इम्कान जहाँ तक हो सके अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, रोए गुनगुनाएं और जिस तरह से जो भी इबादत हो सके हम अल्लाह के सामने करें, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। अल्लाह 70 माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तमाम गुनाहों का इलाज एक ही है, वो तौबा है। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह कहता है जो शख्स कोई भी बुरा काम कर बैठे, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, कोई घटिया से घटिया काम अल्लाह कहता है कर बैठो, और ज़लमू अनफुसहुम, और अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठो, फस्तग़फिरू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करो, तो अल्लाह कहता है वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इस गुनाहों को बख्शने वाला है कौन। तो अल्लाह आपके इंतजार में है कि कब मेरा बंदा मेरे दर पे अपना सर रखेगा, माफ़ी के लिए हाथ उठाएगा, मैं उसके तौबा को कबूल करूँ। अल्लाह हमारे इंतजार में है, लेकिन हम अल्लाह से दूर हैं, शैतान के बगावे में इधर उधर भटक रहे हैं। अल्लाह हम सबको इन तमाम मासियात से बचने और नेक कामों की तौफीक अता फरमाए।